Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to another class. Today we shall read a story which is an adaptation of a story by Maulana Jalaluddin Rumi, and the title of the story is The Man Who Swallowed a Snake. In this story, we will see how a wise person managed to save another man's life without frightening him. Dear students, let's read the story The Man Who Swallowed a Snake. There are many sagacious people in and around us, like doctors, teachers, engineers, and other professionals who work for the betterment of the people. हमारे आसपास बहुत सारे ज़हीन और दानिशमंद लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या बाकी पेशेवर लोग। ये सब लोगों की भलाई का काम करते हैं। They use their wisdom to help us come out of adverse situation. ये अपनी अक्लमंदी और चालाकी से लोगों को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। In this story, a wise man treated the victim without frightening him about the poisonous snake in his stomach through his wisdom. इस कहानी में ऐसे ही एक अक्लमंद आदमी ने अपनी अक्लमंदी से एक ऐसे शख्स की बिना डराए जान बचाई जिसके पेट में जहरीला सांप चला गया था. Read the story and find out how the wise man acted in a difficult situation without losing his presence of mind. अब आप इस कहानी को पढ़ोगे और जानोगे कि कैसे हवास खोए बगैर उस अक्लमंद आदमी ने मुश्किल हालात का सामना किया. One day, a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. एक दिन एक अक्लमंद आदमी घोड़े पर सवार रास्ते से कहीं जा रहा था. जब वो पास से गुजरा तो उसने एक आदमी को देखा जो गहरी नींद में था. As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. और जब वो नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक सांप उस आदमी के मुंह में घुस रहा था. The wise man dismounted quickly and tried to scare the snake away, but to no avail. वो आदमी घोड़े से जल्दी जल्दी उतरा और उस सांप को डरा के भगाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ. Taking up his glove, he struck the sleeping man with several powerful blows. उस आदमी ने अपनी छड़ी ली और उस सोते हुए आदमी को कई बार जोर से मारा. Awakened abruptly from his sleep, वो आदमी फट से जागा. The man felt for safety to a nearby tree. और वो आदमी खुद को बचाने के लिए एक नज़दीक के दरख्त के पास जा बैठा. It was an apple tree. ये एक सेब का दरख्त था. And the ground around it was covered with rotten fruit. और उस दरख्त के नीचे बहुत सारे सड़े सेब पड़े थे. Eat them, ordered the wise man. और उस अक्लमंद आदमी ने उसको सड़े हुए सेब खाने का हुक्म दिया. Stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. वो अक्लमंद आदमी जितना भर सकता था उसने उतने सड़े हुए सेब उस आदमी के मुंह में भर दिए, यहाँ तक कि उसके मुंह में जगह ही नहीं बची. अब कोई सेब अंदर मुंह में जा ही नहीं रहा था. Why are you doing this to me? asked the man. उस आदमी ने कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? What I have done to offend you? मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपको तकलीफ पहुंची? If you have a quarrel with me, settle it with your sword. अगर आपको मेरे साथ कोई झगड़ा है, कोई मसला है, तो तलवार से लड़ो. उसको तलवार से हल करो. Oh, cursed was the hour that you first saw me, and blessed is the man who never sets eyes on you. अब वो आदमी वक़्त को कोसने लगा कि कितना बुरा था वो वक़्त जब आपने मुझे देखा, और कितना खुश नसीब है वो आदमी जिसने आपको कभी ना देखा हो या जिसकी नज़र आप पर कभी ना पड़ी हो. Look, my mouth is pouring with blood and words. O God, I beg thee, repay him in a like manner. देखो, मेरे मुंह से खून निकल रहा है और अल्फाज भी. ए अल्लाह, इसके साथ भी ऐसा ही करो जैसा ये मेरे साथ कर रहा है. Yet, however much the man cursed, the wise man continued to shower him with blows. वो आदमी उसको कितना ही कोसता रहा, लेकिन वो अक्लमंद आदमी उसको लगातार मारता रहा. Keep running, shouted the wise man. उस अक्लमंद आदमी ने कहा, दौड़ते रहो. And the man kept running from his pursuer. और वो डरा हुआ आदमी दौड़ता रहा क्योंकि वो उसके पीछे ही पड़ गया था. Picking himself up off the ground whenever he fell flat on his face. और जब वो गिरता था, वो फिर से उठता था और फिर से दौड़ता था. Stuffed with apples, उसका पेट सड़े हुए सेबों से भरा पड़ा था. His body covered in cuts and bruises, और उसका जिस्म भी पूरी तरह से जख्मी हो गया था.
He was chased backwards and forwards by the wise man until nightfall. वो अक्लमंद आदमी उसको बुरी तरह से दौड़ाता गया, कभी आगे दौड़ाता था और कभी पीछे दौड़ाता था यहाँ तक कि शाम हुई. When he was seized by a violent bout of vomiting, everything came up, including snake. और उसको उल्टियाँ आने लगी और उसको सारा कुछ बाहर आया जो उसने खाया था और वो सांप भी. When the man saw the ugly black reptile, he forgot all about the beating he had received and fell on his knees. और जब उस आदमी ने काला सांप देखा उसको सारा माजरा समझ आया और उसको जो मार पड़ी थी वो उसके बारे में सब भूल गया और वो घुटनों पर गिर पड़ा. Truly, he said, you are an angel for me. उसने कहा, आप सच में मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो. Oh, blessed is the hour that you first saw me, for I was dead and you have given me new life. कितना अच्छा था वो वक़्त जब आपने मुझे देखा. मैं तो मर गया होता मगर आपने मुझे नई ज़िंदगी दी. Had I known, how could I have said such foolish things? अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बेहुदा कलाम कैसे करता. I would have praised you. Have you given me the slightest hint as to what you are really doing? मैं तो आपकी तारीफ़ें करता अगर आप मुझे ज़रा सा इशारा देते कि आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो. Instead, you kept quiet and carried on beating me in silence. मगर आप चुप रहे और मुझे खामोशी से मारते रहे. Had I told you about the snake, replied the wise man, तो उस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया कि अगर मैं आपको उस सांप के बारे में बताता, you might have died of fright, आप खौफ की ही वजह से मर जाते. You would have been so terrified that you would not have been able to eat nor to vomit. और आप इतना डर जाते और उस डर की वजह से ना आप कुछ खा पाते और ना ही उल्टी कर पाते. I heard you abuse me. मैंने सुना आप मुझे बुरा कह रहे थे, आप बेहुदा कलाम कर रहे थे. But carried on with what I had to do, repeating to myself, Oh Lord, make it easy. मगर मैं अपना काम करता रहा और अपने अल्लाह से मदद मांगता रहा कि ए अल्लाह मेरी मदद कर दे और मेरे लिए ये काम आसान बना दे. तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब हम पर कभी मुश्किल वक़्त आता है तो हमें अपने होशो हवास नहीं खोने चाहिए और अपनी हाजिर दिमागी से मुश्किल का हल ढूंढना चाहिए और हमें अल्लाह पर भी भरोसा रखना चाहिए कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा. थैंक यू.